ناصر رحیم یار خان شیخ زید اسپتال میں کورونا آئی سی یو میں آکسیجن گیس فراہم کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے اپنی نگرانی میں آکسیجن گیس کی فراہمی کا کام کروایا اور معاملے کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ خان میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے شیخ زید اسپتال کے دورہ میں کورونا آئی سی یو وارڈ میں آکسیجن گیس کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ گزشتہ روز آکسیجن گیس کی فراہمی معطل ہونے سے کورونا کے وینٹیلیٹر اور ہائی فلو آکسیجن پر موجود مریضوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے رات ہی اپنی نگرانی میں عارضی آکسیجن کی سپلائی کو ممکن بنایا اور ملتان سے آنے والی تکنیکی ٹیم سے بھی ٹیکنیکل فالٹ کو درست کروایا۔ سینٹرلائزڈ آکسیجن ہونے کی وجہ سے مائع آکسیجن پائپس میں جمنے کے باعث رکاوٹ تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے واقعہ کی تحقیق کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر سدرا سلیم کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کل جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو ٹوٹل 130 پیشنٹس تھے وہاں پر جو کہ آکسیجن پہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 16 لوگ جو تھے وہ کووڈ پازیٹیو تھے اور ان میں سے 9 ہمارے آئی سی یو میں تھے۔ الحمدللہ جو ڈسرپشن آئی ہے اس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ جہاں تک انکوائری کا تعلق ہے، انکوائری ہم نے آرڈر کر دی ہے اور بالکل اگر کوئی نیگلیجنٹ ہوا اور کوئی ڈیلنکوینٹ ہوا تو ہم اس کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے شیخ زید ہسپتال کے واقعے پر برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سروسز کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صوبائی وزیر صحت کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور بورڈ ممبر سے جواب طلبی کر لی گئی۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روحی، رحیم یار خان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بات کریں تو شہر اولیا کے باسی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر پریشان ہیں۔ 5 روپے اضافے کے بعد پیٹرول بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ نئی قیمت 123 روپے 30 پیسے ہو چکی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے نے شہریوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پیٹرول 5 روپے مہنگا ہوا، نئی قیمت 123 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 5 روپے 1 پیسہ اضافے کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 120 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ مٹی کا تیل 5 روپے 46 پیسے اضافے کے بعد 92 روپے 26 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ بھیا جتنی بھی امیدیں تھیں اس گورنمنٹ سے وہ تو 3 سال میں پوری ہوئی نہیں ہے، اب عادی ہو گئے ہیں مہنگائی کے۔ یہ بہت غلط کر رہے ہیں عمران خان، تو خدا ہی پوچھے گا۔ اسے بیٹھا ہوا ہی اندر آفسوں میں بڑے بڑے، اسے کیا پتا ہو کیا مہنگائی ہے بھائی۔ لائٹ ڈیزل 5 روپے 92 پیسے مہنگا ہوا، نئی قیمت 90 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر پریشان، کہتے ہیں حکومت عوام کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ ظلم ہو رہا ہے، تبدیلی کے نام سے آئے تھے، یہ تو بس یہی ایک بات ہے کہ سکون جو ہے نا قبر میں ہے، یہ ہمیں قبر میں ہی سکون دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اس حکومت میں پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے گا کبھی سوچا نہیں تھا، کافی امیدیں تھی لیکن تبدیلی سرکار نے پانی پھیر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو پیٹرول کی قیمت میں واضح کمی کرنی چاہیے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پھٹ پڑے۔ شہری کیا کہتے ہیں، آپ کو بھی سناتے ہیں۔ غریب آدمی کہاں جائے؟ تبدیلی سرکار نے ہمارا یہ حال کر دیا، آٹا پورا کرتے ہیں، چینی ختم ہے، چینی پوری کرتے ہیں، پیٹرول پہ آ جاتے ہیں، ہم دن رات بس اسی معاملے میں ہیں۔ خدا کا خوف کرو، ہم غریب آدمی کہاں جائیں؟ پیٹرول اتنا روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ بندے کے لیے سفر کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں ہم پہلے 200 روپے کا پیٹرول ڈلاتے تھے اب 150 پہ آگے، 100 پہ آگے، اب یہ حالت ہے کہ 70 روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم مطلب اس کو چلائیں۔ پیٹرول کی وجہ سے دنیا بہت مشکلات میں ہے، کیونکہ یہ ہماری حکومت جو ہے ناکام ہو چکی ہے، اس کے کوئی بھی چیز جو سنبھالی نہیں جا سکتی، لہٰذا ان کو اب جو ہے نا حکومت میں نہیں رہنا چاہیے۔ حکومت جب سے آئی ہے ایسے نے تو غریب کا جینا حرام کر دیا ہے، آئے روز مہنگائی ہے جو ان سے کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ روز پیٹرول مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، دال گھی تو غریب بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ پیٹرول تو ایک نام ہے، پیٹرول سے زیادہ جو باقی چیزیں، کون سی چیز ہے جو اپنی جگہ پر ہے؟ کوئی چیک بیلنس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی جو چیز سرکاری ریٹ کوئی چیز ہے 100 روپے مقرر ہے تو مارکیٹ میں 200 کو بک رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے مجبوری کو پوندے کھڑے نہیں سے پوندے تے گاڑی کھڑ دیے۔ عید کو پہلے 112-13 روپے، عید دا تحفہ سا کو 7-8 روپے ملے، والا مزید ملتا پہ۔ اللہ خیر کرے ہوں یہ حکومت ہے جی کے خاطر ڈلوانا پڑتا ہے، مہنگائی اتنی ہے، سواری کرایہ اتنی پورا نہیں ہوتا، اللہ پاک پوری کر رہا، ہمارے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ ہر چیز میں مہنگائی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ہر چیز مہنگی کی ہوئی ہے انہوں نے،
तो अब पेट्रोल भी महंगा हो गया, बस हमारी जान छोड़े, मेहरबानी करे। हमें पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं मिलते, 120 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है। पेट्रोल बहुत महंगा है, लेके हम पेट्रोल डलवा रहे हैं। पैसे घर से बहुत मुश्किलों से मिलते हैं पेट्रोल डलवाने के, वो भी बस कभी कभी मिलते हैं। तो बहुत महंगाई हो गई जी, इन्होंने बोला कि हम गरीब किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको खत्म करेंगे, ये मसला है और कोई मसला नहीं है। गरीब लोग हैं, मजदूरी करता है, 600 रुपये दिहाड़ी है, कोई चीज़ नहीं, ना आइटम होता है, ना कोई पेट्रोल ले सकता है, ना कोई घी ले सकता है, कुछ भी नहीं ले सकता। पेट्रोल की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन कीमत है। हमारी तलात के मुताबिक ओगरा ने समरी भेजी थी 1 रुपये फी लीटर इजाफे की, इन्होंने 5 रुपये का कुल्हाड़ा चलाया है। ये लोगों से उनके जीने का बिल्कुल उनको खुदकुशी पे मजबूर कर रहे हैं। आज गरीब 50 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए जो है ना, उसको 20 पॉइंट पेट्रोल आता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, इससे तमाम अशियाए जो ज़रूरत ज़िंदगी है उन पर असर पड़ रहा है और लोग परेशान हैं। 5 रुपये बढ़ाने से बल्कि 50 रुपये हर चीज़ पर बढ़ जाता है। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि पेट्रोल 5 रुपये मजीद महंगा हो गया है। खान साहब, कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर आवाम की जेबों पर डाका मारा गया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने से होने वाली आमदनी हुकूमत करप्शन में उड़ा देगी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, अपोजिशन रहनुमा की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की जिम्मेदारी इमरान खान ने बराह रास्त ले ली। ऐसा लगता है टैक्स वसूल करने वाली साम्राज्य कुव्वत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, उनको हुकूमत चलाने की समझ नहीं है, अवाम को नचोड़ा जा रहा है। जो नई कीमतें उन्होंने फरमाई हैं, जिसकी सिफारिश नहीं की गई उससे भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी हैं, यानी उसकी जिम्मेदारी इमरान खान ने बराह रास्त ले ली है। अब ये इससे आप अंदाज़ा करें कि कौम के दुख दर्द में वो उनको पहुंच रहा है। आप हिस्सादार बनने के बजाय आप ऐसे हैं जैसे कोई टैक्स वसूल करने वाला कोई ऐसा साम्राज्य कुव्वत जिसने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया हो। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असेंबली अली हैदर गिलानी का कहना था कि अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। पेट्रोल 1 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की गई है और बढ़ा 5 रुपये दिया गया। इमरान खान ने जो अवाम के ऊपर, जो ऑलरेडी पिसी हुई गरीब अवाम है, जिसके ऊपर आटे का बम, पेट्रोल घी का बम, दालों का बम ऑलरेडी गिर चुका है इस बजट के बाद, उसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा बम गिराया गया है जो कि पेट्रोल का है। और हुकूमत को 1 रुपये की सिफारिश की गई थी, उन्होंने 5 रुपये इजाफा किया है पेट्रोल में। इसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और ये तो IMF का दिया हुआ बजट है, जिसकी वजह से उनकी शराइत हैं कि आपने हर महीने मसनूआत को बढ़ाना है, पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाना है, आपने बिजली के निर्खों को बढ़ाना है, आपने गैस के निर्खों को बढ़ाना है। इसी तरीके से जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आप बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के साथ साथ हर शोबे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ज़िली सदर मुस्लिम लीग नून उस्मान खान बाबर ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हार का बदला करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम से कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की जो हार है उसका बदला लिया है और हुकूमत, गरीब आदमी का इस हुकूमत में जीना दोभर हो चुका है। लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, अगर इस कठपुतली हुकूमत से हुकूमत नहीं चलती तो ये घर चली जाए। अपोजिशन रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हुकूमत की नाअहली अब मजीद नहीं छुपाई जा सकती। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, जो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजिर भी परेशान है। कहते हैं महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, समझ नहीं आ रहा हुकूमत क्या कर रही है। 1 रुपये का झांसा देकर पेट्रोल 5 रुपये महंगा कर दिया गया। पहले डॉलर ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े, अब पेट्रोल ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया।
मुल्की तहरीक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे हो गई। पेट्रोल महंगा क्यों किया, शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। भैया जितनी भी उम्मीदें थी इस गवर्नमेंट से वो तो 3 साल में पूरी हुई नहीं है। अब आदी हो गए हैं महंगाई के। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर ताजुर ने भी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या कर रही है। तो पहले भी सनती कारकुन बहुत परेशान हैं और अवाम परेशान है, तो ये एक और बम अवाम पे गुजरेगा जो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। गो के गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे कल की तारीख में स्टेट बैंक ने मनी मार्केट में डॉलर डाला है, लेकिन उसकी वजह से भी कोई मार्केट स्टेबल नहीं हुई और उम्मीद है कि 170 जो अभी टच हुआ है 175 तक जाएगा। शहरियों और ताजरों का मजीद कहना था कि डॉलर महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाएगी। हुकूमत के गलत फैसले अवाम को ले डूबेंगे। डॉलर महंगा होने से महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो गया है। शहरी हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का रद्द अमल। नायब सदर इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मियां राशिद इकबाल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। उनका क्या कहना है, आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां राशिद इकबाल है और मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज सुबह हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से महंगाई का जो तूफ़ान आएगा वो सबके सामने होना चाहिए और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि अगर वो बेसिक प्राइस पेट्रोलियम मसनूआत की कम नहीं भी कर सकती तो टैक्सों में कुछ कमी की जाए ताकि आधा वज़न कंज्यूमर पे डाला जाए और आधा हुकूमत खुद बर्दाश्त करे। अगर ऐसा ना किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होने का खदशा है। गिरा फरोशों की बात करें तो कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ है। मुल्तान में गरा फरोशी के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि मुनाफाखोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुनाफाखोरों को जेल भेजा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की ये खास खुसूसी हिदायत हैं कि अशराए खुद नोश है उनकी कीमतों के ऊपर कंट्रोल रखा जाए और आवाम के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो सहूलत दी जाए। उस हवाले से हम वीकली बेसिस के ऊपर इसकी मीटिंग करते हैं ताकि चारों ज़िले जो हैं उनके अंदर जो भी प्राइसेस उनको मॉनिटरिंग के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है उसको जो है एनालाइज किया जा सके। डिवीजन के 4 इजला के डिप्टी कमिश्नर्स की प्राइस एक्ट कार्रवाई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 15 रोज में 64 लाख इंस्पेक्शंस की गई। 75 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। 320 अफराद को गिरा फरोशी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत है कि हर वीकली बेसिस के ऊपर अब चीज़ें जो है नोटिफाई होती हैं, तो हम सप्लाई चेन का भी जायज़ा ले रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, उसकी सप्लाई कितनी हमारे पास अवेलेबल है, कहीं सोर्स जो है वहाँ पे उसकी सप्लाई रोकी तो नहीं गई। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए डिवीजन में 24 रमजान बाजार मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। नाज़िम डायरेक्टर जनरल MD कैसर सलीम ने मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के अहकाम दे दिए। कहते हैं आइंदा 2 माह में बिल्डिंग के 3 फ्लोर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल MD कैसर सलीम की ज़ेर सदारत डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। डायरेक्टर इंजीनियरिंग MD गुलाम नबी को हिदायत की कि कॉन्ट्रैक्टर के काम की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, रोजाना की बुनियाद पर काम को चेक किया जाए। कॉन्ट्रैक्टर को हर हफ्ते अपने तरक्याती काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट बमा तस्वीर पेश करने की हिदायत की गई। रीजनल इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट को हिदायत की कि चौक MDA की कशादगी और खूबसूरती के लिए जल्द प्लान बना लिया जाएगा। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए खबर। सोशल मीडिया पर हरासमेंट रोकने के लिए साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। फेसबुक पर जाली अकाउंट्स की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जनूबी पंजाब में सोशल मीडिया क्राइम बढ़ गए। साइबर क्राइम विंग ने भी नाजेबा वीडियोस और तस्वीर से ब्लैक मेलिंग रोकने की हिकमत अमली तैयार कर ली। गिरफ्तार 3 मुलजमान अली हैदर, काशिफ और स्मार को अदालत में पेश किया गया। तीनों मुलजमान ने नाजेबा वीडियोस के जरिए खवातीन को ब्लैकमेल किया।
साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने मुजफ्फरगढ़ की खातून को मंगनी खत्म करने पर काबिल एतराज वीडियोस फेसबुक पर अपलोड की। मुलजिम अली हैदर ने अपनी ही बीवी की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाई और अलहदगी पर ब्लैकमेल करना शुरू किया। मुलजिम असमार अहमद ने मुल्तान की रिहायशी खातून को नाजेबा वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम फेसबुक के जाली अकाउंट्स की मॉनिटरिंग के लिए कार्रवाई तेज कर दी। जुर्म इंसाफ के तमाम इजला के लिए अलहदा टीमें तश्कील दे दी गई। हुकाम के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 8 से 10 शिकायत भी मौसूल होती हैं। साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक फेसबुक इंतजामिया ने जराइम की रोकथाम और डेटा फराहम करने के लिए खुसूसी नुमाइंदा भी तैनात कर दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान नवाज के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। नाज़रीन, अभी आपको बताएं, जुम्मतुल मुबारक को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की लोड शेयरिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में जुम्मतुल मुबारक को सुबह 10 बजे से 6 बजे गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मुल्तान सिटी में सुई गैस की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक मुमताज़ाबाद, लोहार कॉलोनी, टिम्बर मार्केट और वलायताबाद में गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। मुल्तान पुलिस ने लंबी तान ली, डकैत गैंग बेलगाम हो चुके। चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आ गए। खान विलेज के ताजरों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। खान विलेज के ताजर बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ सड़कों पर आ गए और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर चोरियां हो रही हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। आए रोज यहाँ पे डकैती हो रही है, आए रोज यहाँ पे चोरियां हो रही हैं। पुलिस की कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई पकड़ धकड़ हो रही है। ना हमने SHO साहब के पास कई मरतबा जा चुके हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। ताजुन का मजीद कहना था कि चोर ताला तोड़कर सामान ले जाते हैं। FIR दर्ज भी करवाई, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जब ये लॉकडाउन है तो पुलिस गश्त कर रही है, दुकानें बंद करवा रही है, और लॉकडाउन नहीं है तो पुलिस वैसे गश्त ही नहीं करती। चोरी डकैतियां आम है, वैसे भी तो गश्त करना चाहिए ना, वो गश्त नहीं है। ताजुरों ने CPO मुल्तान से खान विलेज में पुलिस का गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है ताकि बढ़ती वारदातों में कमी आ सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। शहर औलिया में भी स्कूल खुल गए हैं। तलबा और असातिज़ा खुश। हैरतअंगेज तौर पर बच्चे भी छुट्टियों से तंग नजर आए हैं। मुल्तान में भी स्कूल खुल गए। तलबा SOPs के साथ स्कूल के गेट से दाखिल हुए तो असातिज़ा ने वेलकम किया। असातिज़ा का कहना था कि बच्चों के आने से स्कूलों की रौनकें बहाल हो गईं। अब नॉन स्टॉप तदरीसी अमल शुरू हो जाएगा। नन्हे बच्चे भी स्कूल दाखिल होते हुए खुश नजर आए। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम स्कूल आए हैं। जब हम स्कूल नहीं आते तो हम बोर होते हैं। आज स्कूल आए तो मैं आज अपने दोस्तों से मिला। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि स्कूल दोबारा खुले हैं और अब ये हमने पिछले साल स्मार्ट सिलेबस पढ़ा था तो इस साल फुल सिलेबस होगा। हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, इसलिए स्कूल खुले। हम स्कूल में आके अपने दोस्तों से मिले। स्कूलों में मौजूद स्टाफ का कहना था कि तालीमी इदारों में SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। पहले ही बच्चों का तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है, अब स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। तालीमी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो लेकिन चूंकि ये मसाइल होते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए फ़िलहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है आज अल्लाह ताला का कि आज हम फिर से इस काबिल हुए हैं कि बच्चों को तदरीसी अमल को जो है ना कंटिन्यू कर सकें। तलबा का कहना था कि असातिज़ा और दोस्तों को मिलकर SOPs के साथ तालीम हासिल करके खुश हैं। छुट्टियों से तंग आ गए हैं, अब ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। नाफिल ट्रेनों पर सफर करने वाले मुसाफिरों को एक और इम्तिहान का सामना। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक बगैर वैक्सीन लगवाए मुसाफिर ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से वैक्सीनेशन न कराने वाले मुसाफिरों को टिकट जारी करना बंद कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक वैक्सीन की कम अज कम 1 डोज लगवाने वाले मुसाफिरों को सफर करने की इजाज़त होगी। मुसाफिर कहते हैं हुकूमत ने अचानक फैसला किया और रेलवे ने भी शराइत रख दी हैं। सर एक बात यह है कि ये जो फैसला इन्होंने दिया था और कल ही लिख के लगा दिया है, लेकिन उसके मुताबिक टिकट उनको बुकिंग के साथ के वैसे भी टिकट नहीं दी जा रही। लिहाजा ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जो उन्होंने नहीं लगाई, लाइनों में लग के वैक्सीन नहीं लग रही है। रात को 10-10 बज जाते, 12-12 बजे लाइन में लगे वैक्सीन की वजह से बाई टाइम वैक्सीन खत्म हो जाती है। जिनको इस तरह नहीं लगी उनको टिकट क्यों नहीं मिलेगी। मुसाफिरों ने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कुछ दिन पहले बताते तो मुसाफिर वैक्सीन लगवा लेते। वैक्सीन लगवाने का मरहला बहुत मुश्किल है, इसलिए वैक्सीन नहीं लगवा सके। अब टिकट नहीं मिल रहा, ट्रेन की सहूलत भी ना मिली तो मसाइल में इजाफा होगा। मैंने 2 वैक्सीनें लगवाई हैं,
मेरे पास 2 कार्ड मौजूद हैं। रेलवे इंतजामिया की तरफ से रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर्स भी मुहैया किए गए। मुसाफिर रेलवे स्टेशन से वैक्सीन लगवाकर टिकट हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का नया फैसला मुसाफिरों पर भारी पड़ रहा है। बगैर टिकट के मुसाफिर सफर नहीं कर सकते। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ शुएब गुरमानी, मुल्तान।